Come on in. So you're currently working for a radio channel, is that correct, Karthik? Absolutely. Yeah. Which channel is this? So I'm working for 94.3 My FM. It's Dainik Bhaskar Group's radio division, right? And people who are from Jaipur, who are from Jaipur, who are from Rajasthan, who are from India. Nice. So let's make some noise. Make some noise. 3, 2, 1. Make some noise. Yay! अच्छा ऐसे नहीं बोलेंगे. Till the time I'll not speak in Hindi, they'll not speak, right? So हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? तुझे हिंदी में समझाऊं क्या? जब कभी समझ में नहीं आता तो फिर हिंदी में समझ में आता है. So थोड़ा सा जोर शोर मचाते हैं. अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले. Come on everybody. Make some noise. Yeah, good one. Yeah. So I have a few questions for you, Karthik. Thank you. See, that's a professional at play. He's getting the best angle of the camera for himself. Yeah, right. That's why I'm creating my own space, right? Yeah, I'm going to be asking a few questions in English, but feel absolutely free to answer in whichever language you feel. Yeah. So, number one, your social media following is greater than many radio stations' social media following, right? No, nothing like it. These are, and I'm talking about there are much bigger brands, there are much bigger news organizations or even corporate companies. But you as an individual have been able to carve a niche for yourself and you've built a strong community around yourself. What advice, based on your experience, would you want to give to all the youngsters here on how we can build our own brand? Right, so thank you so much. Lovely question. So it's for the first time somebody is speaking in English, asking me a question in English, I'm going to answer in Hindi, right? So, 2009, I started my internship in a radio channel, My FM, same radio channel where I'm working right now, and it has been more than 15 years. In 15 सालों में, now let's come to Hindi. So in 15 सालों में, मैंने चीज़ें जो सीखी हैं, I'll just summarize it in a formula. There are 100% people who dream, right? सपना देखा अभी कल रात में? किसने सपना देखा कल रात में? याद रहा? किसने कल सपना देखा था? इस महीने में कोई सपना याद रहा? या तुम्हें सपने ही नहीं आ रहे हैं? मुझे बहुत आते हैं यार. So, 100% लोग होते हैं जो सपने देखते हैं. They are dreamers and dreamers, right? Only 50% जो होते हैं वो execute करते हैं. सही बोल रहा हूँ? उन 50% में से भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मेरा काम नहीं बना. Why? Because they were not consistent. Only 5% होते हैं जो consistent होते हैं और वो achievers बनते हैं, right? So there are so many dreamers in this world, but there are only few achievers. तो ऐसा नहीं है कि जिसने सपना देखा उसे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है. But शायद उन्होंने consistency के साथ में follow नहीं किया. So I started my radio journey in 2009. I was a passionate, what should I say? I was a passionate person who was just dreaming to become a radio jockey in that time. So I was going through so many radio channels. I consumed almost, I guess, 2000 plus radio links. So 2000 ज़्यादा मैंने radio links मेरे उस laptop में जो उस समय मैं जब internship कर रहा था. So I kept on consuming radio और मैंने इतना ज़्यादा radio consume कर लिया कि जब मैं radio channel में internship करने के लिए गया तो मैंने बताया कि आपने उस दिन ऐसे बोल दिया था. बोले यार तुझे कैसे पता है? बोले मैं उस समय सुन रहा था, मैंने record भी किया हुआ. So मैं एक पैशनेट ड्रीमर था जिसने सिर्फ ये सोचा कि यार मुझे रेडियो जॉकी बनना है. और जब रेडियो जॉकी बनना है तो सिर्फ आरजे नहीं बनना है. आरजे कार्तिक को कुछ एक ब्रांड बनाना है जो इंडिया में लोग जाने, राइट? देयर आर सो मेनी रेडियो जॉकीज इन इंडिया, आई गेस मोर देन 1000 प्लस. तो उसमें अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना इट्स अ टास्क, राइट? सो कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया स्टोरी, आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया इन 2017. 2017? राइट. इट हैज़ बीन ओनली 8 years. My goodness. Right. So, जैसा सबके साथ होता है कि शुरू में हम फोटो डालते हैं तो कोई लाइक नहीं करता है, तो मेरे साथ भी हो रहा था कि जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था, दोज वीडियोस आर क्रॉसिंग ओनली 150 प्लस व्यूज. 50 और माइन. आई वाज जस्ट गोइंग बैक अगेन एंड अगेन टू चेक कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े. तो 50 तो मैंने खुद ही उन वीडियोस को दिया. सो लाइक फॉर 6 months आई केप्ट ऑन अपलोडिंग. So Mr. Harisham Bhatia was till then our CEO. So he suggested that why you guys are not uploading these stories which we were narrating on radio. Why you guys are not creating a video version of this story? So we started creating video version of that story. And after 6 months, one of my story went viral, and the title was "अगर आपका भी time खराब चल रहा है तो ये देखें." Time खराब चल रहा है? Anybody in the house? Your time is not going right. Oh, it is going right. You are in a perfect city, in a perfect weather.
what more you want? So इंडिया में प्रॉब्लम ये, दुनिया में एक्चुअली, कि आप किसी से भी अलग से जाके पूछो ऐसे तो नहीं बताएगा कि कैसा चल रहा है, बोले ठीक नहीं चल रहा है। चाहे वो चार्टर से जा रहा हो तब भी कहेगा यार कुछ और मिल जाए। हम लोगों के साथ ऐसा है कि हमें स्वर्ग भी मिल जाए ना तब भी हम कहेंगे कि यार स्वर्ग तो ठीक है, सीट अगर ब्लू कलर वाली मिल जाती तो बढ़िया रहता। तो हमारी ये जो मोर 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 वाली जो दिक्कत है उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम खराब नहीं चल रहा है। एंड दैट वाज द कैप्शन फॉर दैट स्टोरी। अगर आपका भी टाइम खराब चल रहा है तो ये देखिए। एंड दैट वीडियो क्रॉस्ड आई गेस 10 मिलियन प्लस व्यूज। और उसकी वजह से जो पहले के 6 महीने का जो मेरा कंटेंट था दैट स्टार्टेड गोइंग वायरल। आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। So I started my first story, first motivational story in March 2017. My first video went viral in October 2017, in 6 months. At that time I was in London for AIB Awards. I got nominated for the AIB Awards London, that's a prestigious award for radio shows. So that time I received a text from a lady who is there in London. She texted me, sir, can I meet you? So I got wondered कि यार जयपुर का आरजे लंदन में कोई तुमसे मिलना चाह रहा है। ये power, that's the power of social media, right? So that's the power of content. मैं बोलता हूँ अक्सर अपने रेडियो शोज में कि रेडियो जॉकी कहते हैं तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। आवाज़ अच्छी होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, बात अच्छी होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। So आपकी बात में दम होना चाहिए। जब बात में दम होता है तो फिर अपने आप हो जाता है। So that's like अरिजीत सिंह, कि बंदा सिर्फ अपनी गायकी पे ध्यान देता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना। दुनिया तो आपके मजे लेती रहेगी, लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे हैं ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। सो लोग बहुत कलाकार होते हैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जो आपके बार बार नंबर पूछते हैं, रिश्तेदार स्पेशली आपके मम्मी पापा से ज़्यादा आपके रिश्तेदार आपकी चिंता कर रहे होते हैं। एक बार तुम्हें उन्हें कॉल करके पूछो कि थोड़ा पैसा मिलेगा उधार, उस दिन से वो चिंता करना बंद कर देंगे, राइट? सो पीपल विल क्रिटिसाइज यू, पीपल विल जज यू। इंडिया में सभी जज हैं, बट यू शुड keep working on yourself. You should keep focusing on your work. That's my formula. Beautifully put. So, Karthik, many of us out here are now facing through the problems that you went through at the beginning of 2017, which is you put your heart out, you create videos, you write stories, but there are 50 views, 100 views, 150 views, and then you tell yourself, "Arey yaar, I'm putting so much effort, only so many people, why bother?" And they usually, that's the main problem with consistency, because they feel that they're not getting enough audience and they cut short. What would be your advice? My advice is, if you think your work is good, just believe in yourself. Just keep doing the good work. One day it will turn into a success story. एक रात में सक्सेस नहीं मिलती है ना, कहते हैं ना रातों रात वायरल हो गया। उस रात को लाने के लिए कई रात लगती है, राइट? तो हमें उस रात को लाने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सोशल मीडिया कंटेंट, हम ओवरऑल लाइफ की भी बात करें। मैं रेडियो जॉकी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हो गया हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि मैं मोटिवेशनल कंटेंट करता चला है। आई गेस कि रेडियो जॉकी को पहले एंटरटेनर के तौर पे लेते थे कि यार रेडियो जॉकी आया कुछ हंसा के जाएगा। सो आई कैन से कि मेरी कहानियों से या मेरी तरीके के जो लोग कंटेंट कर रहे हैं उन्होंने वो आरजे की जो डेफिनेशन है, दे हैव चेंज द डेफिनेशन दैट रेडियो जॉकी कैन बिकम a game changer in this society. So we started doing good work, basically motivational stories in 2017, and we kept on doing the same thing. There were 30 other RJs with me in my radio network. So you're right that some of them didn't post after 2-3 months. They stopped doing this. उनको लगा कि यार हो गया, अभी जा तो रहा नहीं है वायरल, क्या मतलब, इन्होंने रोक दिया। बट मैं करता रहा 6 महीने के बाद में चीज़ें वायरल होने लगी। और वो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है ना तो पुराना भी ढूंढ के निकालते हैं लोग, लाते हैं ना। वैभव सूर्यवंशी का भी देखा आपने, वो बचपन का 4 साल का था, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो जैसे ही आप वायरल हो गए, आपके मामा का कॉल आएगा, बेटा तेरी एक फोटो मेरे फ़ोन में रखी हुई है, उसको मैं वायरल कर रहा हूँ, तू मत डालना, ठीक है? तो कंटेंट आपका कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। और जो आपने पूछा, द आंसर इज कंसिस्टेंसी। वो कैसे आएगी, उसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस खुद आपको तलाश लेती है। हमारा देश इतना बड़ा देश है, नवीन चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो इनसे मेरा एक बार जिक्र हो रहा था, इन्होंने बोला कि इतना बड़ा देश है कि हमारे देश में हर चीज़ की ऑडियंस है, राइट? एंड्रॉयड यूजर्स इन द हाउस, एंड्रॉयड यूजर्स, एप्पल यूजर्स इन द हाउस, ठीक है, सब तरह के मिलेंगे हमारे यहाँ पे, है ना? सो वी कैरी अ फोन 5,000 रुपये से लेके लाख रुपए तक वाला भी। तो हमारे यहाँ पे भी अगर आप कंटेंट क्रिएट करके कमाल नहीं कर पा रहे हो तो शायद आपको अपने कंटेंट पे देखने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए और अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए, क्योंकि जिसका कंटेंट अच्छा होता है उसकी ऑडियंस अपने आप ढूंढ करके उस तक पहुंच जाती है। सो स्टोरीज ऐसे ही वायरल नहीं होती है, उस कंटेंट में दम होता है। देन पीपल स्टार्ट डाउनलोडिंग योर वीडियो, देन स्प्रेडिंग दैट वीडियो ऑन व्हाट्सएप। तो मेरी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो फेसबुक पे नहीं चली हैं, यूट्यूब पे नहीं चली हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं चली हैं, बट व्हाट्सएप पे बहुत घूम रही है।
और वो फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स के साथ मेरे पास आती है कि तो हमारे ग्रुप में भी आई, हमारे ग्रुप में भी आई. So initially when I was doing my content on social media, I was, because we all are materialistic people, so I was focusing on views, social media presence, number of followers, number of subscribers. Then later on I realized कि boss, it is not the game. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के उस जाल में फंसे हुए हैं और उनको शायद पॉजिटिविटी की ज़रूरत है. सो वन मॉर्निंग आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ लेडी. शी टेक्स्टेड में कि मेरी दादी माँ ने मुझे 4 बजे जगा दिया आज सुबह, बोला कि कार्तिक की वीडियो यूट्यूब पे चला दे. सो देन आई गॉट इट कि बॉस, ये लाइफ का हासिल है, पैसा भी आता रहेगा, व्यूज़ भी आते रहेंगे, फॉलोअर्स भी बढ़ते रहेंगे, बट अगर आपने किसी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल दिया है, जैसे जैसे जो हम पुराने 90s वाले बच्चे जो जानते हैं स्पेशली कि रामायण जैसे आती थी सुबह सुबह, हम लोग वेट करते थे. सो आई अपलोड माई स्टोरी ऑन एवरी मंडे मॉर्निंग 9:30. Beautiful. सो कभी कभी 9:35 हो जाता है तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप ठीक हो, सब बढ़िया है. सो दैट्स द पावर कि लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट कर गए. हमारा देश 150 करोड़ लोगों के आसपास हम पहुंच गए, 140 प्लस हो गए. उसमें 1 करोड़ फॉलोअर्स है मेरे, 1,20,00,000, 12 मिलियन. तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 1 करोड़ को बांधे रखना, उनके साथ कनेक्ट रहना और उनको जो वो चाह रहे हैं वैसा कंटेंट पहुंचाते रहना. बिकॉज आई एम अपलोडिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम लास्ट 8 years. सो इट्स अ बिग टास्क कि आप हर बार क्या नया बताओगे. और मुझे हर बार ऐसा लगता है कि यार इस मंडे जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो अगले मंडे पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं होगी, लेकिन अपने आप अगले मंडे वाली और अच्छी स्टोरी आती है. और फॉर द इंस्टाग्राम जनरेशन आउट हियर, आई अपलोड 1 minute स्टोरी, 2 minute नूडल्स, 1 minute स्टोरी, राइट. सो आई से ये आरजे कार्तिक की 1 minute स्टोरी, तो पहले ही पता होता है कि यार 1 minute में बताने वाला है, क्योंकि हमारी जनरेशन के पास टाइम नहीं है, उनको अगली रील देखनी है. तो इससे पहले कि वो अगली रील देखें, उन्हें अपना कंटेंट देना बहुत ज़रूरी होता है. एंड वन ऑफ माई लाइन हैज़ बिकम वायरल, इट्स किसी ने बड़े कमाल की बात कही है. सो पीपल आस्क मी कि वो किसने बड़े कमाल की बात कही है. तो मैं बोलता हूँ यार कि जैसे पहले अज्ञात होता था. सो अभी कोविड के टाइम में मैंने ऐसा किया था कि मैंने बोला कि आप अपनी कोई कविता लिख करके, आपने कुछ भी लिखा हो तो भेजो, आई रिसाइट इट. तो मेरे पास में एक पोम आई, उसको 6 अलग अलग यूजर्स ने भेजा. फिर मैंने गूगल पे ढूंढा कि किसकी पोम है, तो उसके भी 15 जो हैं वो ऑथर मिले. सो देन आई थॉट कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे वो मिल जाएंगे कि मैंने लिखी है सर, मैंने लिखी है. तो कुछ लाइंस जो मैं खुद लिखता हूँ उसको भी मैं यही बोलता हूँ कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही, कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं. जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस जाने का टाइम हो जाता है. तो जब तक वापस जाने का टाइम हो उससे पहले रास्ते समझ लो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है. आपको बात पसंद आ रही हो तो आप ताली बजा सकते हैं, हम लोग थोड़ा इनफॉर्मल रहेंगे, इधर फॉर्मल रहूंगा मैं. हाँ, या Thank you. I see a small disconnect between the audience and us on stage, and I'll tell you why. Some of us might be thinking, oh Karthik, it is very easy for you to say. You are already an RJ. You can speak fluently, you can make people laugh, you can make people clap, but I'm just a simple student. I'm not gifted speaker like you. How can I? No, I'm also not a gifted person. So sometimes the thing that holds us back is our self-limiting belief that, hey, I'm not good enough. When I am good enough, I will start. What advice would you give? Yes, that's a really good question. हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं यार कि तुमने कर लिया, तुम बन गए, अब हमारा थोड़ी होगा. ऐसा थोड़ा ना होता है. इंडिया में कोई एक ही कर पाता है, या 10 लोग ही कर पाते हैं, या 20 लोग. जो यहाँ स्टेज पर आ रहे हैं आपको लगेगा कि वही लोग कर पाए, हम कैसे करेंगे. सो ऑनेस्ट स्टोरी सुनाता हूँ मैं. 2007 में आई वॉज डूइंग माई बीबीए कर रहा था मैं, ठीक है. अब स्टूडेंट वाली अपन थोड़ा मोटिवेशनल वाली बात करते हैं, ठीक है. 6th क्लास में मेरे फादर ने मुझे बोला, हम लोग घर के ऐसे दरवाजे पे बैठे हुए थे. आई एम मिडिल क्लास, आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. भवानी मंडी इज़ माई होम टाउन्स नेम. झालावाड़ ज़िले में लास्ट टाउन है, उसके आगे एमपी शुरू हो जाता है. तो वो स्टेशन ऐसा है कि वहाँ पे राजस्थान और एमपी के बीच में जो है ना प्लेटफॉर्म है. तो इंस्टाग्राम जनरेशन ने वहाँ जाके बहुत सारी रील बनाई है, तो एमपी के, मैं राजस्थान का, ठीक है. तो ऐसे लवी डवी रील्स बनी है वहाँ पे. लेकिन तो मैं जिस टाउन से आता हूँ वहाँ पर ऐसे बड़े सपने आप देख रहे हो. 2007 की मैं बात बता रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. मेरे फादर ने मुझे बोला जब मैं 6th में था कि क्या बनना चाहता है. मैंने बोला मैं क्या बनूंगा. तो पापा ने बोला लाल बत्ती वाली गाड़ी होनी चाहिए, IAS बनना. तो मेरे फादर ने मुझे पहला बड़ा सपना दिखाया कि कलेक्टर बन सकते हो. 9th में आया मैं तो मुझे लगा यार डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है. तो मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा. फिर मैंने 11th में केमिस्ट्री और वो सब ले ली. जब मैंने केमिस्ट्री बायो और वो ले ली तो फिर आपने पढ़िए, साइंस बैकग्राउंड वाले कितने इधर, इतनी मोटी बुक आती है. मुझे सपने में आया एक दिन, सपने में पापा को कह रहा था पापा ये नहीं हो पाएगा, पर तब हो नहीं पा रही थी हिम्मत. तो 11th में मैंने वो ली और मैं केमिस्ट्री में फेल हो गया. सो मैं अपने फादर के साथ जब स्कूल गया तो रिपोर्ट कार्ड लिया, तो मेरे फादर ने उस समय कोई रिएक्शन नहीं दिया. तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे होगी मेरी क्लास या घर जाके होगी. बीच में हम एक फ्रेंड के घर गए पापा के, तो उन्होंने पूछा कैसा रहा.
तो पापा ने कहा नहीं अच्छा रहा। घर जाके भी घर वालों को उन्होंने नहीं बताया कि फेल हो गया। मुझे लग रहा शाम में मेरी अच्छे से पूजा होगी। फिर मेरे पापा ने मुझे बुलाया और बोला कि यार कोई बात नहीं, फेल हो गया तो तैयारी कर, इसको क्लियर कर, 12th के बाद जो तुझे अच्छा लगे वो ले लेना। सो आई सेड ओके। तो मैंने फिर वो केमिस्ट्री का 1 महीने का जो CBSE में टाइम मिलता है, अप्रैल वाला जो मंथ होता है, मैंने वो क्लियर किया। 12th के बाद मैंने BBA लिया। BBA लेते वक्त मुझे लगा कि यार अब मुझे CEO बनना है। तो मेरे सपने शुरू से बड़े बड़े रहे। सो मैनेजमेंट में जब मैं आया, आई डिसाइडेड कि यार CEO बनते हैं। सो देन आई ट्यून इनटू माय FM। तो उस समय RJ सेड जो थे वो शो कर रहे थे, तो मुझे लगा यार मैं ये बन सकता हूँ। तो मैंने तब वो सपना देखा, होशो हवास में जो सपना देखते कि यार ये कर सकते हैं, और तब मैंने शुरू किया। क्योंकि मैं छोटे टाउन से आता हूँ तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ था। जो मैं भी इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ घर से रट के आया है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक डायरी ली, मेरे पास वो डायरी रखी है अभी भी, जिसमें मैंने सिमिलर वर्ड्स लिखे अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए। जो स्पेशली स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि कुछ बड़ा नहीं हो सकता, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप चीज़ें बदल सकते हो। सो मैंने वो सिमिलर वर्ड्स लिखे, प्रोनाउंस करना शुरू किया। मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो मेरा जो रूममेट था, मैं उससे पूछता था कैन आई बिकम अ रेडियो जॉकी, बोलता पागल हो गया ये, दिन रात एक ही बात पूछता है। तो मैं मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करता था ये सब वो सब। फिर मैं जब रेडियो चैनल्स जाता था तो मेरा CV रख लेते थे वो लोग, उसको कुछ काम, उसको वैल्यू नहीं मिलती थी मेरे CV को। तो मैं गार्ड साहब को कहता कि इस पे पोए रख के खा लेना बाद में, अभी मत रखना मेरे सामने। तो वो मेरा CV ऐसे ही डोलता रहा। फिर मुझे फाइनली माय FM में अपॉर्चुनिटी मिली इंटर्नशिप की, और जब मैंने इंटर्नशिप की तो मुझे लगा कि यार अब तो अपन बन गए। फिर मुझे रियलिटी चेक मिला कि यार अभी तुम्हारी आवाज़ ठीक है बट आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ है, आवाज़ भी बहुत पतली थी उस समय। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने और ज़्यादा काम किया और ज़्यादा काम किया। तो बहुत सारा हार्ड वर्क है जो मुझे यहाँ पर लेकर के आया है, और उसके पीछे कोई शॉर्टकट नहीं होता। आई हैव रिटन अ बुक, अगर यहाँ पर आदर्शन मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा। सो आई हैव रिटन अ बुक। उस बुक पर भी व्हाट्स द टाइटल? टाइटल इज कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, एंड इट हैज बिकम Amazon बेस्ट सेलर इन जस्ट 4 months। 4th एडिशन इसका आ गया है। Nice. So we are very soon coming up with an English edition of this. So I have written 21 chapters of life in it. 21 चैप्टर्स लिखने की कोशिश की, और 2 साल से मैं लिख रहा था। 2022 में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बुक। क्योंकि मुझसे लोग पूछते थे कि आपकी कहानियाँ इतनी सारी वायरल हो रही हैं कि आपने कोई बुक में लिखी हुई है, तो मैंने सोचा कोई बुक लिखते हैं। और बिकॉज वो जो स्टोरीज हैं पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो आई थॉट कि कुछ अलग लिखते हैं। तो मैंने उन कहानियों को, मेरी कहानियों को मिला के ये बुक लिखी है, और बहुत सारा प्यार इस बुक को मिला है। इस बुक का जो पहला चैप्टर है दैट्स मृत्यु। अब आप पूछोगे कि शुरुआत ही नकारात्मक क्यों कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मरना तो सबको है, बट हाउ वी कैन रीस्टार्ट आवर लाइफ। अगर आपको अभी पता चले कि आपकी अभी डेथ हो गई है, नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ का नया मोमेंट है, हाउ यू विल रिक्रिएट थिंग्स इन योर लाइफ, हाउ यू विल चेंज योर लाइफ, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये बुक उसके बारे में कि कैसे आप अपनी लाइफ का प्रारंभ दोबारा से कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन इज बेसिकली, कट शॉर्ट करके मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसे ऐसे मिल गया, मैंने वो पाया है। शहर वही था, लोग वही थे, यही होटल थी, यही जेलन मार्ग था, यही जवाहर सर्कल था, सब वही था। बट लाइफ में सम्मान हमेशा आपके समय और परिस्थिति का हो रहा होता है। कई बार लोग अपना मान लेते हैं ना, स्पेशली नेता, तो वो आपका नहीं हो रहा होता, आपके समय और परिस्थिति का हो रहा होता है। तो आपको वो समय और परिस्थिति बदलना है। वही शहर रहेगा, वही लोग रहेंगे, आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, आपके लिए प्यार बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपको अर्न करनी पड़ेगी, राइट? और अर्न कैसे होगी? कंसिस्टेंसी से होगी, हार्ड वर्क से होगी। एज आई वाज सेइंग बिफोर, देयर आर सो मेनी ड्रीमर्स इन दिस वर्ल्ड, बट बहुत कम होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, और उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। तो आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, जो अभी बहुत सारे सपने देख रहे होंगे कि कुछ कमाल कर दिखाना है, तो बस टिके रहना, कर दिखाना कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। थैंक यू। Beautiful, beautiful, fantastic. And one final question to you, Karthik, is that nothing motivates people like money. Money, Okay. yes, yes. Yeah. So I personally, somebody like you, and I've also known quite a lot of people who have invested in building their own brand, in having their own platform, and not just becoming just an employee. So the biggest benefit is that many of the people actually tend to make equal or more amount of money than they would if they had a full-time job. What is your experience? मनी के पीछे तो भागना चाहिए, देखो ये भी ठीक है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी कि सिर्फ मनी के पीछे भी दौड़ोगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है ना? ये सच है कि नहीं है? सच है ना? So he's asking that you can earn more while working, or How can students make money from their passion? From their passion, right? You need to follow your passion 100%. आप ट्रैवल ब्लॉगर बन के भी बना सकते हो, राइट? अब आप में से कुछ लोग बोलोगे वो यूट्यूब पे यार दिन भर दिखाते रहते हैं समोसे में कितना आलू है, लेकिन उसका काम है भाई, वो
और वो ऐसे समोसे के आलू बता बता के इतना बड़ा बन गया कि तुम्हें पता नहीं चलेगा. सो दे आर टू टाइप ऑफ पर्सन, राइट? वो टू टाइप्स कौन सी है? पहली वो है जो सिर्फ जज करती रहती है, तो ऐसा है तो वैसे. दूसरी होती है जो साइलेंटली काम करती रहती है. देयर इज वन मोर एग्जांपल. हमारे साथ में अरविंद चोटिया साहब बैठे हुए हैं. इन्होंने एक्स पर, ही इज अ वेरी रेनाउंड जर्नलिस्ट इन राजस्थान एंड नाउ इन इंडिया. सो ही स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन एक्स. अभी आप इनका अकाउंट जाकर के देखोगे, एक्स पर इतनी इंगेजमेंट है, उस पर इतनी इंगेजमेंट है, क्योंकि ये अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, रोकते नहीं है खुद को, और ये नहीं सोचते कि यार इस पर कोई, इनको जो लगता है वही लिख देते हैं. सो आपका जो पैशन है, बिकॉज ही इज अ जर्नलिस्ट, तो ये बड़े बड़े जो है आर्टिकल सॉर्ट ऑफ जो है उस पर लिखते हैं, पूरा इतना ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं, पढ़ने का भी मन करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. कुछ ऐसे हैं जो ऑथर बनना चाहते थे, उन्होंने इतनी खूबसूरत किताबें लिखी कि वो बेस्ट सेलर बन गए, राइट? और दुनिया शुरू में आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, बट अगर आपका पैशन सच्चा है, वो कहते हैं ना, अगर इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, एल्केमिस्ट की जो लाइन है, ओम शांति ओम का डायलॉग है, तो भाई सच्चा प्यार तभी मिलता है जब सच्चा किया हो. तुम्हारा प्यार ही झूठा था तो कैसे मिलेगा, राइट? तो अगर आपका पैशन सच्चा है, यू कैन अर्न सो मच, सो मेनी डॉलर्स इन दिस वर्ल्ड, बट उसके लिए इट डिपेंड्स how passionate you are and how honest you are with your work. So whether you are working in a company or whether you are just working yourself, just doing self work, just doing freelancing, if you are passionate you can earn so much. बट सिर्फ पैसे के पीछे भी नहीं भागना, अपने काम के पीछे भागना है. काम अपने आप को पैसा दिलाता है. जब मैंने ये बुक लिखी तो मेरा कोई पर्पस नहीं था मनी वनी बनाने का, मेरा सिर्फ बुक लिखना था. फिर मुझे पब्लिशर मिले, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ करेंगे. 3-4 पब्लिशर में से एक जो थे उनके साथ हमने काम शुरू किया. बुक ने बहुत अच्छा किया. अभी उन्होंने मुझे चेक भेजा है. चेक तो था लेकिन वो बड़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन करके उन्होंने एक बॉक्स में भेजा था. मुझे वो बॉक्स बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा बॉक्स बड़ा अच्छा लगा. कह रहे वो अंदर चेक भी आया हुआ है. मैंने कहा चलो मैं देख लूँगा. तो आप वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि आप जब अपने एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, मनी सच में आपको फॉलो करती है. मैं इसी शहर में पैदल इंटर्नशिप के लिए जाता था 2 किलोमीटर चल के, वापस भी जाता था घर अपना, जो मेरा टोंक फाटक पे मैंने रूम लिया हुआ था. आज मेरे पास में मर्सिडीज है. तो कहानी ये है कि चीज़ें बदलती हैं अगर आप बदलना चाहें, अगर आप सच में अंदर से ऑनेस्ट हों. और मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं. ख्वाब तो सबके बड़े होते हैं. मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो कमाल कर दिखाते हैं. That's the bottom line. Awesome, brilliant. Thank you so much, Karthik. And the beauty of somebody coming, the fact that you've taken the time out to come to an event like this is that you can meet achievers in flesh and blood. And there's something magical about hearing it from them. And I really hope that it motivates you to put all of these points into action. Karthik, once again, thank you so much. Let's give it up for RJ Karthik. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you.